नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट क्लास 12th फिजिक्स में आज पहले समझते हैं गॉस लॉ को और उसके बाद जानते हैं उसकी कुछ सिंपल एप्लीकेशंस। ये लर्निंग वीडियो दो भाषाओं में बनाई गई है। शुरू में हम विषय का वर्णन अंग्रेजी भाषा में कर रहे हैं, फिर इसका दौरान हिंदी भाषा में कर रहे हैं। दीज इंफॉर्मेटिव लर्निंग वीडियोज आर प्रिपेयर्ड इन 2 लैंग्वेजेस। फर्स्ट द सब्जेक्ट मैटर is described in English and then the same is revised in Hindi. Let's start applications of Gauss law. Counting of electric force lines is known as electric flux, and electric flux crossing per unit normal area is called as flux density or strength of electric field. So if a area is placed normal to electric force lines and total amount of flux psi is passing through it, then the ratio of flux and normal area is known as flux density or is strength of electric field. And if the same area is tilted by an angle theta, then flux passing through this new tilted position shown by this green highlight get reduced to a new figure psi dash, and now flux per unit normal area, that is a dash or a cos theta. This angle is theta. This projected normal area is now a cos theta. A cos theta is reduced by the same amount as flux has reduced, and we found that in similar electric force lines distribution, density of force lines or the strength of electric field is same whether area is placed normal or with an angle theta. So when an area is placed normal to force lines or area vector and electric field intensity vector are in the same direction, then amount of flux passing through that normal area is given by product of electric field intensity and area. And if area makes an angle theta from normal or area vector normal to the surface makes an angle theta with electric field intensity, then flux passing through that tilted area is the same as passes through normal area a cos theta, and flux passing through an area which makes an angle theta from normal to electric force lines is given by EA cos theta relation, or it could be written as dot product of E vector and A vector, where area vector is directed normal to the surface and theta is angle between E vector and area vector. Gauss law relate total amount of flux crossing a closed surface and amount of charge enclosed by the surface. Here this positive Q charge produce outward electric field as shown by arrows, and on the surface a small dA area making an angle theta with E vector have small amount of flux E dot dA, and total flux can be obtained by closed surface integration. And as per Gauss law, total flux coming out of any closed surface or closed surface integration of surface electric field intensity over the entire surface is equal to enclosed charge divided by permittivity of media. If surface enclosed more than one charge, then as per Gauss law, the net or total flux across this closed surface is equal to the ratio of total enclosed charge, that is Q1 plus Q2 minus Q3, and permittivity of the media. So we can say total flux coming from any closed surface is closed surface integration of surface electric field intensity and is equal to ratio of enclosed charge and medium permittivity. Here all external charge, say Q4, also produce electric field contribution over the surface of this study, but the net flux contributed over this surface is only by internal charges, as external charge produce equal and opposite incoming and outgoing flux through this surface. So flux across any closed surface depends only on total amount of internal charges and is equal to total internal charges divided by permittivity of medium. विद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं की संख्या गिनती को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और एकांक अभिलंब काट क्षेत्रफल से निकलने वाले फ्लक्स को फ्लक्स घनत्व या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ ए क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं के अभिलंब रखा हुआ है और इससे गुजरने वाला फ्लक्स साई और क्षेत्रफल का अनुपात एकांक अभिलंब क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स या फ्लक्स घनत्व ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर इस काली रेखा में बताए गए एरिया को अगर मोड़ दिया जाता है थीटा कोण से और ये नई भूरी स्थिति में आ जाता है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स हरी हाईलाइट अनुसार पहले से कम साइडस हो गया है, लेकिन क्योंकि बल रेखाओं का वितरण या फ्लक्स घनत्व या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यथावत रहेगी, और इस नई स्थिति में ये जो अभिलंब काट क्षेत्रफल है ए डैश, जो इस ए के साथ थीटा कोण बनाती हुई स्थिति में ए कॉस थीटा है, उस ए कॉस थीटा और नई स्थिति में जो घटा हुआ फ्लक्स साई डैश है उसका अनुपात एकांक अभिलंब काट क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स फ्लक्स घनत्व या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। या हम कह सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई में अगर कोई ए काट क्षेत्रफल अभिलंब रखा हुआ है, तो उस अभिलंब काट क्षेत्रफल से निकलने वाला कुल फ्लक्स साई विद्युत क्षेत्र तीव्रता और अभिलंब एरिया का गुणनफल
वोल्ट इंटू मीटर इकाई में होगा। और अगर ये क्षेत्रफल मोड़ दिया जाता है तो इस मुड़ी हुई स्थिति में भी अभिलंब क्षेत्रफल a cos थीटा और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो गुणनफल है वो बदली हुई स्थिति में क्षेत्रफल से निकला हुआ फ्लक्स हो जाएगा। और इस फ्लक्स को हम ई वेक्टर और एरिया वेक्टर, ई सदिश और एरिया सदिश के अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है वो तल से अभिलंब नॉर्मल डायरेक्शन में है और ई और क्षेत्रफल सदिश के बीच में ये थीटा कोण है। तो डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पहले सदिश ई का मान, दूसरे सदिश क्षेत्रफल का मान और दोनों के बीच में ये जो कोण है उसका कोसाइन प्राप्त हो गया है। गॉस का नियम किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स को पृष्ठ में परिबद्ध आवेश से जोड़ता है। यहाँ एक धनावेश अपने चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र बना रहा है, जिन्हें यहाँ काले तीरों से हमने दिखाया हुआ है, उसके कारण इस बंद पृष्ठ पे सतह पर एक छोटे से क्षेत्रफल dA से जो विद्युत फ्लक्स अल्प मात्रा में निकल रहा है वो E और dA का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा या E dA cos थीटा हो जाएगा, जहां थीटा E वेक्टर और तल के अभिलंब एरिया वेक्टर के बीच का कोण है। और संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स ऐसे अल्प फ्लक्स को पूरे सरफेस पे समाकलन करके ज्ञात हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स सतह पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बंद पृष्ठ समाकलन हो गया है। और ये बंद पृष्ठ समाकलन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश और माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात है। अगर पृष्ठ से परिबद्ध आयतन में एक से अधिक प्रकार के आवेश हैं तो इस स्थिति में भी पृष्ठ पर किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E में छोटे से क्षेत्रफल से निकलने वाला छोटा सा फ्लक्स विद्युत क्षेत्र तीव्रता और अल्प क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल हो गया है। पूरे पृष्ठ पे निकलने वाले फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए हमने विद्युत क्षेत्र की जो पृष्ठ तीव्रता है उसका बंद पृष्ठ समाकलन कर लेना है। और गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स या पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बंद पृष्ठ समाकलन पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश जो यहाँ Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 है और माध्यम की विद्युतशीलता उसका अनुपात होगा। यहाँ ये बात समझ लेनी जरूरी रहेगी कि किसी पृष्ठ पर बाहर के आवेश का भी विद्युत क्षेत्र प्रभाव तो हो सकता है, लेकिन उस बाह्य आवेश के द्वारा पृष्ठ पर अंदर आने वाला धनात्मक फ्लक्स और बाहर जाने वाला ऋणात्मक फ्लक्स बराबर मात्रा में बनाया जाता है। तो किसी बंद पृष्ठ में पृष्ठ के ऊपर जो शुद्ध फ्लक्स की मात्रा है वो केवल आंतरिक आवेशों के द्वारा निर्धारित होती है, बाह्य आवेशों का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। We have to find out net flux across these four closed surfaces A, B, C and D using Gauss law. Let's first consider this blue spherical surface A which enclose three charges plus 2 microcoulomb, minus 3 microcoulomb and minus 1 microcoulomb. As per Gauss law, total flux across this closed surface is equal to total enclosed charge divided by permittivity of air, and sum of these three charges plus 2 microcoulomb, minus 3 microcoulomb and minus 1 microcoulomb is minus 2 microcoulomb, and enclosed charge divided by permittivity represent a negative flux across this spherical surface, and negative flux means net flux across this spherical boundary A is incoming flux. Now consider this black irregular closed surface B which enclose three charges plus 4 microcoulomb, plus 2 microcoulomb and minus 3 microcoulomb, and as per Gauss law total flux across this closed surface B is equal to total enclosed charge divided by permittivity, and enclosed charge is 4 microcoulomb, minus 3 microcoulomb and plus 2 microcoulomb, and the sum is plus 3 microcoulomb, and this enclosed charge divided by permittivity is net flux which is positive or outgoing from this closed surface B. Now consider this brown cubic surface C. In this closed surface the total enclosed charge minus 3 microcoulomb and plus 3 microcoulomb are equal magnitude and opposite polarity. Such charge configuration is also known as dipole, and this dipole got net charge 0. So the total amount of enclosed charge is 0. So net flux across this C cube would be 0. In the end, when we consider this black cube D, then it encloses all 5 charges of plus 4 microcoulomb, minus 3 microcoulomb, plus 2 microcoulomb, plus 3 microcoulomb and minus 1 microcoulomb, and sum of all charges in this cube is 5 microcoulomb, and enclosed charge divided by permittivity of air becomes the total outgoing flux which is positive or outgoing in nature. If a charge plus q is placed at the center of this cube, then we have to find out total flux across this cube and flux from any one face of this cube. This cube got 6 faces. So as per Gauss law, flux from cube is equal to enclosed charge q upon medium permittivity, and this central position is symmetrical with respect to all 6 faces. So this total charge
charge symmetrically divide equally across each face. So one face got 1/6 of total flux or Q upon 6 epsilon 0 flux. If this charge is not placed at symmetrical center position but some eccentric position inside cube, then total amount of flux will remain same as Q upon epsilon, but we can't solve this problem flux across any face of a cube. If this charge is not placed at the center but little eccentric, as in this cube having size 5 by 5 by 5, this charge is placed from this bottom face at the center height of 3 meter, then we can say that if we construct a face of 6 by 6 size and form a cube of 6 into 6 into 6 meter dimension, then for this charge total amount of flux that by that 6 by 6 by 6 cube is Q upon epsilon, and one face of that cube would have this much amount of flux. As 6 by 6 size got Q upon 6 epsilon 0 flux, so this 5 by 5 surface area would have flux less than Q upon 6 epsilon 0. गॉस के नियम का इस्तेमाल करके हमें ये जो चार बंद पृष्ठ यहाँ नीले रंग का गोला A, काले रंग का अनियमित बंद पृष्ठ आकृति B, भूरे रंग का ये घनाकार आकृति C और काले रंग की ये बड़ी घनाकार आकृति D में से निकलने वाला कुल फ्लक्स निकालना है। पहले अगर हम इस नीले गोलाकार पृष्ठ A की बात करें तो इसमें 3 आवेश अंदर है और ये सिर्फ अंदर के आवेश ही किसी पृष्ठ से फ्लक्स का निर्धारण करते हैं। बाहर रखे हुए आवेशों का किसी भी पृष्ठ पे फ्लक्स योगदान नहीं होता है। तो यहाँ +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम का जो कुल योग है वो -2 माइक्रोकूलम आवेश में अगर विद्युतशीलता का भाग दे दें तो गॉस के नियमानुसार यही पृष्ठ से निकला हुआ कुल फ्लक्स हो जाएगा। और ये ऋणात्मक मान बता रहा है कि इस पृष्ठ पे जो फ्लक्स है वो आने वाला इनकमिंग फ्लक्स है। अगर हम काले रंग की इस अनियमित आकृति B की बात करें तो इसमें भी अंदर 3 आवेश +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम है। और ये जो बाहर इसके जो आवेश हैं वो इस बंद पृष्ठ पे किसी भी प्रकार का फ्लक्स योगदान नहीं करेंगे। अंदर के आवेशों का जो योग है वो 3 माइक्रोकूलम धनात्मक और उस परिबद्ध आवेश में विद्युतशीलता का भाग देने पे जो अनुपात आया है वही पृष्ठ का कुल फ्लक्स हो जाएगा। और ये धनात्मक फ्लक्स बता रहा है कि इस B पृष्ठ से जो शुद्ध फ्लक्स है वो बाहर की दिशा में आउटगोइंग प्रकृति का है। तीसरे उदाहरण में ये भूरा घनाकार आकृति अगर हम देखें तो इसमें केवल 2 आवेश अंदर -3 माइक्रोकूलम और +3 माइक्रोकूलम बराबर मान और विपरीत प्रकृति के हैं। इस तरह के आवेश युग्म को विद्युत द्विध्रुव भी कहते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव में शुद्ध आवेश 0 होने के कारण ऐसे किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को बंद करने वाले पृष्ठ में से निकलने वाला कुल फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एक द्विध्रुव का जो नेट फ्लक्स है वो हमेशा 0 होता है। अंतिम उदाहरण में इस बड़े काले घन की अगर हम बात करें तो इसमें सभी पांचों आवेश +4 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम और +3 माइक्रोकूलम अंदर आ गए हैं। अंदर आए हुए सभी आवेशों का योग +5 माइक्रोकूलम और विद्युतशीलता का अनुपात इस बड़े बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स हो गया है। धनात्मक प्रकृति के कारण ऐसे फ्लक्स को हम आउटगोइंग फ्लक्स या बाहर की तरफ निकलता हुआ फ्लक्स कहेंगे। तो अगर कोई पृष्ठ शुद्ध आवेश अंदर ऋणात्मक रखता है तो उसमें ऋणात्मक फ्लक्स आने वाला होगा, और अगर शुद्ध आवेश अंतर जो परिबद्ध हुआ है वो धनात्मक प्रकृति का है तो ऐसे पृष्ठ से शुद्ध फ्लक्स बाहर की तरफ पॉजिटिव आउटगोइंग प्रकृति का होगा। और अगर विद्युत द्विध्रुव की भांति किसी पृष्ठ के अंदर शुद्ध आवेश 0 है तो ऐसे पृष्ठ से कोई भी नेट शुद्ध फ्लक्स आवागमन नहीं होगा। अगर एक घनाकार आकृति के ठीक मध्य में एक +Q आवेश रखा जाए तो इस पूरे घन से कितना फ्लक्स होगा और घन के एक सतह से कितना फ्लक्स होगा ये ज्ञात करना है। गॉस के नियमानुसार किसी भी बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश Q है तो आवेश और विद्युतशीलता का अनुपात उस पृष्ठ का फ्लक्स हो जाएगा। तो इस पूरी घनाकार आकृति से Q अपॉन एप्सिलॉन फ्लक्स बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये आवेश की स्थिति पूरे घन के 6 फलकों के सापेक्ष सममित है तो कुल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन 6 फलकों से एक समान रूप से वितरित होगा और किसी एक फलक से बाहर निकलने वाला फ्लक्स कुल फ्लक्स का 1/6 Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अगर आवेश घन के सममित केंद्र बिंदु पर ना हो, जैसे यहाँ 5 बाई 5 बाई 5 मीटर विमाओं का एक घन में सतही फलक के केंद्र से 3 मीटर ऊंचाई पर अगर ये आवेश रखा गया है तो ये आवेश घन के अंदर आ गया है, तो इस 5 बाई 5 बाई 5 के घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 है। लेकिन किसी एक फलक से सममिति नहीं होने से हम फ्लक्स की मात्रा को ज्ञात करने के लिए
चलिए कल्पना करते हैं कि ये जो आवेश है वो एक दूसरे घन 6 मीटर बाई 6 मीटर बाई 6 मीटर विमा के ठीक मध्य में आ गया है, और ऐसी स्थिति में एक फलक 6 बाई 6 मीटर का होता तो उससे फ्लक्स Q/6 एप्सिलॉन 0 होता। क्योंकि 6 बाई 6 के आकार से फ्लक्स Q/6 एप्सिलॉन 0 है, तो कुछ फ्लक्स जो इनसाइड से निकलेगा वो इस 5 बाई 5 मीटर के क्षेत्र से नहीं जाएगा, तो 5 बाई 5 मीटर के फलक से निकलने वाला फ्लक्स Q/6 एप्सिलॉन 0 से कम होगा। HRQ is placed on the surface of this brown closed body, so this charge is neither outside of enclosed surface and nor it is inside the closed surface. If it was outside of this closed surface, we would have said that total amount of flux by that external charge across this closed surface is 0, and if it is inside the surface, then we would have said that total amount of flux across this closed surface is Q/epsilon. But here this charge is neither outside nor inside, just on the surface. So in such condition, to apply Gauss law, just imagine another identical closed surface and put that on the top of it. Now this charge is in between these two surfaces, then the total amount of outgoing flux through these two closed surfaces is Q/epsilon. Since these two surfaces are just symmetrical with respect to this charge, then flux across any one surface would become half of this total Q/2 So when charge is on one of the face of a cube, we can say total amount of flux contributed by that charge over this closed surface is Q/2. When such charge is placed on one of the side of cube, as on this brown cube, at one side we have placed a Q charge. Now this Q charge is neither inside nor outside, and we have to find out total amount of flux across this brown cube. So let's put 3 more cubes such that this charge become inside all 4 cube, and since this charge position is symmetrical with respect to all 4 cubes, so total outgoing flux across all 4 cube is Q/epsilon, and flux across any one cube would be 1/4 of total Q/4 When charge is placed at one of the corner of cube, as here this Q charge is placed at one corner of this brown cube, then even when we consider 4 cube, this charge is neither inside these 4 cube nor it is outside. But if we place 4 more cube in front of these cubes, then we found that this Q charge is just in mid of these 8 cube. So total flux across these 8 cube surfaces is Q/epsilon, and flux from one cube would become 1/8 of total Q/8 epsilon. So when charge is placed at one corner of a cube, the total amount of flux across this cube is Q/8 epsilon. And now if we analyze this position of charge, then on these 3 shaded faces, E vector and area vector are normal to each other. So net flux across these surfaces would be 0, but the remaining 3 surfaces, this covered by dark black lines, this bottom surface and this front surface, are identically placed with respect to this Q charge, and total flux across this cube is Q/8 epsilon, and 3 faces equally share that total flux. So flux from one face would become Q/24 epsilon. अगर इस भूरे बेलनाकार पृष्ठ के किसी फलक पर एक आवेश Q इस तरह से रखा हुआ है कि ना वो इसके अंदर है ना वो बाहर है, वो सतह के ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में इस बद्ध पृष्ठ पे गॉस का नियम नहीं लगाया जा सकता। अगर ये आवेश बाहर होता तो हम कह सकते थे कि इस बंद पृष्ठ से शुद्ध फ्लक्स बाहर रखे हुए आवेश का 0 होगा, और अगर ये आवेश इस बंद पृष्ठ के अंदर होता तो हम कह देते कि पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स Q/epsilon है। ऐसी स्थिति में जब किसी एक सतह पर रखा हुआ आवेश ना बंद पृष्ठ के अंदर है ना बाहर है, गॉस के नियम को लागू करने के लिए हमने भूरे बेलनाकार पृष्ठ के सममित एक काले बेलनाकार पृष्ठ को इस तरह से भूरे के ऊपर रखा कि ये आवेश दोनों के ठीक बीच में आ जाए, और ऐसी स्थिति में दोनों बेलनाकार पृष्ठ भूरे और काले से निकलने वाला कुल फ्लक्स Q/epsilon है। इस आवेश के सापेक्ष दोनों बंद पृष्ठ सममित है, तो किसी एक बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स Q/2 epsilon हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी घन के एक फलक पर कोई आवेश Q रखा जाए तो 2 घनों को मानने पर दोनों घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स Q/epsilon होगा, और किसी एक घनाकार आकृति से निकलने वाला फ्लक्स सममिति से Q/2 epsilon ज्ञात हो जाएगा। अगर एक घनाकार आकृति पे आवेश अंदर या सतह पे न होके एक साइड के ऊपर होगा, जैसे कि यहाँ चित्र में भूरे घन के एक साइड पर आवेश Q रखा हुआ है, तो हम 3 दूसरे घनों को इस तरह से सम्मित विन्यासित करेंगे कि ये आवेश चारों के सम्मित केंद्र में आ जाए, और चारों घनों से निकलने वाला कुल फ्लक्स Q/epsilon हो जाएगा गॉस के नियमानुसार। और क्योंकि चारों घनाकार आकृति परस्पर सम्मित है इस आवेश के सापेक्ष, तो इस भूरे घनाकार
आकृति से निकलने वाला कुल फ्लक्स Q/4ε हो जाएगा। अगर आवेश घन के बीच में, फलक में या एक साइड पे न होके एक शीर्ष पे हो, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में एक घन के साथ अगर 3 और घन भी हम रख लेते हैं तो ये जो किनारे पर शीर्ष पर रखा हुआ आवेश है वो ना तो इन बंद पृष्ठों के अंदर है ना बाहर है। और गॉस का नियम लागू करने के लिए हम जैसे ये 4 घन अब बन गए हैं, उनके साथ 4 और घन इनके आगे अगर रख दें तो अब 8 घनों के बीच में ये आवेश ठीक सममित केंद्रीय स्थिति में आ गया है और 8 घनों के कुल पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो गॉस नियमानुसार Q/ε हो जाएगा। क्योंकि 8 घनाकार आकृति सममित है तो किसी एक घनाकार आकृति से निकलने वाला कुल फ्लक्स Q/8ε हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक किनारे पर या शीर्ष पर रखा हुआ Q आवेश है वो इस घनाकार आकृति के सभी फलकों से जो शुद्ध फ्लक्स बना रहा है वो Q/8ε है। अब अगर हम ये आच्छादित 3 पृष्ठ देखें, ये साइड का, ये ऊपर का और ये पीछे का, तो यहाँ विद्युत बल रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश में 90 डिग्री का कोण होने से शुद्ध फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि इन फलकों के साथ Q आवेश की पृष्ठीय स्थिति बन रही है। वहीं ये जो 3 दूसरे फलक पृष्ठ हैं, ये गहरी लाइन से दिखाया हुआ, ये नीचे का और ये सामने का, ये इस आवेश के सापेक्ष सममित स्थितियों में है और वो कुल Q/8ε को बराबर बराबर 3 भागों में जब बांटेंगे तो हम कह सकते हैं कि किसी एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स Q/24ε हो जाएगा। इन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड एट 300 मीटर एल्टीट्यूड इट्स मैग्नीट्यूड इज 60 वोल्ट पर मीटर एंड फ्रॉम सरफेस एट एल्टीट्यूड 200 meter its magnitude is 100 volt per meter. Now in this atmosphere a 100 by 100 by 100 dimension cube was placed and we have to find out total amount of charge enclosed in this cube. So it is clear that this variation in electric field magnitude is due to presence of charge inside this cube, and since electric field is directed vertically downward, so only on this top shaded face A and this bottom shaded face B there is flux crossing, and the remaining 4 faces got E vector and area vector mutually perpendicular and no flux across those faces. Now at face A, E vector is normal to the surface, so total amount of flux is multiplication of electric field intensity and area of face. Area is 100 by 100 meter square. Electric field is 60 volt per meter. So total amount of flux in volt into meter unit is 6 into 10 raised to 5 at face A, incoming or negative. Similarly at face B, where electric field strength has increased to 100 volt per meter, the total amount of flux would become positive 10 into 10 raised to 5 voltmeter outgoing nature. So the net flux across this cube is net outgoing flux minus net incoming flux, and it is net outgoing flux 4 into 10 raised to 5 volt into meter. And as per Gauss law, it is clearly indicate that this 4 into 10 raised to 5 is enclosed charge upon medium permittivity, or enclosed charge is net flux multiplied by medium permittivity, and permittivity of air is 8.854 into 10 raised to minus 12 farad per meter, and enclosed charge is 4 into 10 raised to 5 voltmeter. So enclosed charge would become 3.54 microcoulomb. उम्मीद है इस वीडियो की मदद से परीक्षाओं में जो संभावित प्रश्न हैं उनके उत्तर आप सहजता से दे पाएंगे और गॉस लॉ की एप्लीकेशन के बारे में आपकी समझ बेहतर बन गई होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी फिजिक्स की पकड़ मजबूत होगी और परीक्षाओं में ऊंची सफलताएं प्राप्त हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।